Okay, good morning, dear guys. Today is the second part of my lecture, Biodiesel and Alternative of Fossil Fuel through Plants. Today I will let you know how the fruit is harvested, how the fruit is processed, how the fruit is deshelled, how the fruit is dried, stored, and if I get time I will also narrate about the extraction of biodiesel. So, first flowering. Flowering is very important. If there is no flower, there won't be any fruit. Flowering, flower. Nature has given us a ratio of male and female flower. Human, almost male and female are 50-50. Plants, almost male and female are 50-50. Animals also 50-50. But here you see in Jatropha, you look at the flower, housefly is sitting. In this flower, male and female ratio is one male is one male is equal to 25 female. At 25 female, only one male flower is present there. Means chances of pollination are less. Chances of pollination is less, very less. So sometimes male flower matures early before the female and dies. So no chance of pollination. No chance of pollination. But nature, that's why I have told that productivity of Jatropha seed is little less. Now the scientists are working hard to develop technique for maximum pollination and creation of maximum male flower. And flowering starts in July, this month, July, August, winter season, rainy season. Nowadays, if you have plant, if you go to observe, you will find flowers there. Flowers, and after flowering, fruiting starts, and the fruit bearing stage is 3 years. And if the plant come in flowering and fruit bearing stage in 3rd year, and full bearing is in 6th year. पूरा bearing, plant starts bearing. Suppose आप ले जाते लंगड़ा चौसा आम ले जाते छोटा सा, तो that start flowering same year. इतना बड़ा पौधा और आपको अच्छा सा आम लगेगा. Why? Yesterday I told you, because these are mangoes plants are prepared by cuttings. Old plants, new seeds, new plants are raised by seed of mango, and their twig branch is grafted with the old tree. Means the age of that plant is full bearing stage. Similar is the case with Jatropha. If you raise your plant through stem cutting, certainly your plant start flowering and fruiting early, but it takes 5 to 6 years in full bearing. Now, flowers are pollinated by insects especially. अभी लिखा है स्पेशली बाय हनी बी. ऐसा नहीं है, दिस इज ओल्ड लिटरेचर. पहले हम जानते थे, हमको वी वर अवेयर ऑफ दैट ओनली हनी बीज pollinate flowers. ऐसा नहीं है. देयर आर नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ इंसेक्ट. फर्स्ट डे आई टोल्ड यू देयर आर 14 lakh species known to us, animal species. Out of that 10 lakh species are only and only insects. So out of 10 lakh species, most of the insects they do pollination. तो अभी तक हमको हनी भी पता था. देयर आर हाउस फ्लाइज, बीटल्स, ग्रास होपर्स, वो पॉलिनेशन करते हैं ताकि फ्रूटिंग. अब आप सोचिए, इवन आवर एनिमल्स, काउज एंड बफेलोज, डंकीज, मंकीज, क्रो, owls, they are also supporter of pollination. They carry pollens in their hairs, in their wings, in their legs. When they sit on other plants with the flower, that plant is pollinated. उनमें pollination हो जाता है.
विंड से हमारा भी होता है विंड पॉलिनेशन, हवा से भी होता है। मेज में देखा, मेज में लगा था सारे पॉलन उड़, कभी कभी आप देखिए फ्लावरिंग स्टेज में, इफ देर आर फ्लावर्स इन ट्रीज, एज सुन एज देर इज विंड, लॉट ऑफ पॉलन, येलो कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर, दे स्टार्ट ब्लोइंग, और एक दूसरे प्लांट में चले जाते, पॉलन हो जाता है। पॉलन मीन्स, पॉलन इज मेल पार्ट, पॉलन जो था मेल गैमीट है, जैसे हमारे मेल में, हमारे ह्यूमन में स्पर्म है, मेल में, फीमेल में ओम है। सिमिलर इज द केस दिस प्लांट, मेल में उनके पॉलन होता है, मेल पार्ट है, और फीमेल में उनके गायनीशियम में चला जाता है किसी रब, बाई एनी मीन्स इफ द पॉलन रीचेज टू फीमेल पार्ट, पॉलिनेशन विल बी देयर, certainly pollination will be there. Anyway, I am not going in detail of pollination. You see, the fruit, this is full bearing. You see different types of fruit. Green भी है, you find green, black, yellow. This is bearing. It fruits in cluster, गुच्छे में फलता है, काफ़ी गुच्छे में। आपको study I told you there must be minimum 20 to 25 branches. I think this is not okay. पंखा चल, you need fan you can switch off. अच्छा, तो fruiting is always in cluster. As many as branches you have got in a plant, so many fruit cluster you will have. जितनी branches होगी उतने अच्छे fruit clusters हैं, then your production will increase. One fruit, अगर इसको dissect करेंगे तो one fruit consists of 3 parts, 3 halves, not 2 halves, 3 portions, and each portion bear one seed. So there are 3 seeds in one fruit. Sometimes there may be 4 also. Sometimes this is little less possibility. You see, yellow, black, green. So for oil purpose, for biodiesel purpose, don't pick up green plants. You have to pick up yellow plants. Black is only for seed. Now there is no need of seed. Yesterday I told you that now the plantation is done by stem cutting, so there is no need of seed production for seeding. This is the cluster you see. Now, harvesting is very, I told you, suppose you go to harvest neem, mahua, imli for biodiesel, it is very difficult. Who will climb on the tree? What is the technique? Only old traditional technique we have, still we don't have no mechanized harvesting. So Jatropha plant is little less of your height. Simply you take a gunny bag and bend the branch, harvest and put up inside. This is, and you can store in the, इसमें सिंपल से इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ईजी है। हार्वेस्टिंग, अब इसको जो हार्वेस्टिंग में, दिस इज ए हार्वेस्टेड फ्रूट, यू हैव टू ड्राई अंडर इन सन, सूरज में ही सुखाना है इसको। सुखाने के लिए कोई आपको मशीनरी नहीं चाहिए, ये यू कैन ड्राई इन द ओपन सन, आफ्टर ड्राइंग यू कैन स्टोर। अब इसमें एक फ्रूट में क्या है, इसमें 1 किलो में 1800 फ्रूट होते हैं, 1 kg 1 kg आप जट्रोफा, यानी 1800 नंबर ऑफ फ्रूट्स मेक 1 kg, और 1800 fruits means there are 3 seeds per fruit. So you can calculate कि how many seeds will be there. ये ज़्यादा नहीं बता रहे हैं इसका सीड कोट, सीड, आप मूंगफली खाते हैं, छीलते हैं, उसका फ्रूट हस्क बाहर निकल गया, देन यू गेट ग्राउंड नट, उसमें भी एक ऊपर से पतला सा लेयर होती है, आप खाते हैं ना। इन दिस केस व्हाट, इसको जब छीलेंगे तो फ्रूट हस्क इसका बाहर होगा, अभी दिखाएंगे, और इसका जो सीड होगा दैट इज कवर्ड विद सीड कोट, बहुत हार्ड होता है, सीड बहुत हार्ड होता है, इसीलिए नहीं तो बाहर मूंगफली की दाने की तरह अलग अलग हो जाएगा। तो सीड कोट, ये सब इसका रेशियो दिया हुआ है, दैट यू नीड नॉट स्टडी, आपको हम बायोडीजल पे ही आना है। नाउ इंटरक्रॉपिंग, आई टोल्ड यू प्लांट, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट प्लांट फुल बियरिंग ऑफ प्लांट इन 6th ईयर, 6वें साल में। हाउ ईयर फ्रूट बियरिंग स्टार्ट्स इन 3rd ईयर, लेकिन फुल बियरिंग, but by this time, यानी 3 years and 6th year, a farmer cannot wait. Farmer requires money, cash money, at every 2-3 months interval. अगर 2-3 महीने में देखता, 6 महीने 6 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। तो to meet the requirement of a farmer in the form of cash, there has
there is provision that has been experimented, and farmer now can get good money from the Jatropha field by intercropping, crop between crop, one crop with other, या 7 crop in one, जैसे जौ आपको बताया था गाँव में बोल जाता था, अरहर, अलसी, अरहर, तिल्ली, बोड़ा, उड़द, मूंग, ये सब चीज़ें सनई सब एक साथ बोई जाती हैं। इसलिए वाई इंटरक्रॉपिंग, रेवेन्यू जनरेशन विदाउट गैप बाय फार्मर्स, गैप नहीं होना चाहिए ताकि फार्मर्स को मिलता रहेगा। लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉप, वेजिटेबल्स, फोडर्स, फ्लावर्स, इट स्पेशली को। अब इंटरक्रॉपिंग में व्हाट क्रॉप यू विल सेलेक्ट, सपोज इन इंडिया हमारे यूपी में हम ग्रो कर रहे हैं, यूपी में हमें जट्रोफा का ऐसी क्रॉप हो जो यहाँ के लिए होती है, सीजन में हो जाती है। हम साउथ की या ईस्ट की हम चाय, मान लो चाय लगा देते हैं, वो नहीं हुआ, चाय भी प्लांट टाइम लेता है, चाय लगा सकते हैं लेकिन दैट इज टाइम टेकिंग, वैसा नहीं। तो हमें अपनी लोकेशन की ही क्रॉप को लेना है, सो दैट वी कैन मेक पॉसिबल टू सेंड इट टू द मार्केट और वी कैन सेल इट लोकली इजीली। नाउ ये देख लीजिए, इसमें इसी इंटरक्रॉपिंग हो रही है। हमने मिर्च, लाल मिर्च, कैप्सिकम, कैप्सिकम तो हरी मिर्च, शिमला मिर्च होती है, रेड चिली, चिली ग्रीन चिली होती है, इफ़ यू ड्राई इट बिकम्स रेड। चिली किया, हार्वेस्ट कर लिया, इंटरक्रॉपिंग सारी क्रॉप्स लगी हुई देख रहे हैं। पालक, टर्मरिक, टोमेटो, टर्मरिक हल्दी, टोमेटो, रेडिश, स्पिनच, चिली, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ब्रिंजल, बीन, कुकरबिट, टोमेटो, बॉटल गार्ड एंड फ्लावर्स, मैरीगोल्ड। ये काफ़ी कुछ, ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स। ये देखिए, दिस कैप्सिकम, आप देखिए चिली लगी हुई है, अगेन इसमें ब्रिंजल लगाए गए हैं, ऑलमोस्ट ऑल। और स्पिनच, स्पिनच क्या है, ये बहुत क्विकली इट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट, और किसान ले जाए। चिली, कैप्सिकम, अगेन इट विल टेक टाइम। सो इसे चिली प्लांट्स है, हार्वेस्टेड प्लांट्स। नाउ कैबेज, cauliflower, see, cabbage, cauliflower, आराम से you can grow. Now bottle gourd, कैप्सिकम, ये दिस इज नॉट, ये कैप्सिकम नहीं है, ये वो है कैप्सिकम एनम, इसका साइंटिफिक नेम है। ये है चिली, हाइब्रिड चिली है, ग्रीन चिली। आप देखिए ब्रिंजल, बीन, गुड क्वालिटी ऑफ बीन यू कैन ग्रो। ये क्या है, जैसे इस व्हेन यू गो फॉर ब्रिंजल, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड एंड चिली, इट इज अगेन टाइम टेकिंग, बट यू quickly spinach, radish, bean, they are ready within 2.5 months. When radish is ready 1.5 months. Every month, at every 1.5 month interval, a farmer gets some revenue. That's why farmer is happy. Again देखिए, fodder cultivation. Now there is acute shortage of fodder for dairy cattle. We are losing our cattle. Because there is no pasture land and we are maintaining on 45 food or whatever the wheat, paddy, husk we are getting. Already we have reduced our area in cultivation of ज्वार, बाजरा, सरगम, जो हमारे मेन सोर्स ऑफ फोडर थे, हमने करीब करीब ख़त्म कर दिए, और ग्रीन पॉस्चर लैंड हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो अब इसके लिए हम बीच बीच में ग्रीन फोडर लगा सकते हैं। कैरिड आउट इंटरक्रॉपिंग विद मेज, ग्रीन फोडर में क्या है, मेज, स्वीट कॉर्न, ज्वार, सप्लाइड एज ग्रीन फोडर टू, हमने मिलिट्री फार्म सिकंदराबाद को सप्लाई किया था हमारा मिलिट्री। अब आप देखिए फोडर में क्वेश्चन आपको बन गया, फोडर आपको राइट अ नोट ऑन फोडर। फोडर मीन्स ग्रीन फोडर फॉर कैटल, एनी टाइप ऑफ, नॉट ओनली कैटल, एनिमल्स, डेयरी कैटल्स में भी हो सकते हैं, आपको डंकी भी हो सकता है, एस भी, रैबिट भी हो सकते हैं, डियर एंड गोट भी हो सकते हैं, शीप एंड गोट भी हो सकते हैं। अब यू टॉक अबाउट ग्रीन फोडर, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रीन फोडर। पहला, फोडर क्रॉप्स विच यू एंड मी नो इजिली, एंड वी हैव विच यू एंड मी हैव सीन hugely. Fodder crops, any crop is for green fodder. Mustard, pea, gram, जो भी आप खेत से लाइए ग्रीन उठा लाइए, या when the plant population is more in any field, in paddy or rice or wheat, or you take out to make a proper ratio, a proper population density
of a crop in your acreage, extra plants you take out and feed to cattle. This is fodder crops, fodder trees. Second is fodder trees. विलेज में देखा है कि तमाम ट्रीज, आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन की टहनियों को काट करके ये जानवरों को, बकरियों को खिलाई जाए। हाथी फॉडर क्रॉप से तो रिलाई नहीं करता, दैट लाइज गन्ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गन्ना नहीं मिलता तो उनको पौधों के बरगद और पीपल के पेड़ खिलाए, फॉडर ट्रीज। लाइकवाइज थर्ड इज फॉडर ग्रास, जो हम अपने वजह पास्चर लैंड जो हमारी थी, चारागाह, जिसमें तरह तरह की घास को हम, छोटी छोटी होती, क्रीपर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उनको हम अपने जानवरों को खिलाते खिलाते। नाउ ये देखिए फॉडर क्रॉप्स हमने दिखाया, और इसको कट करके लद करके मिलिट्री फार्म को जा रहा है। अच्छा सा इनको हमारे पास बहुत देर बाद वेरी बिग कैटल हर्ड। नाउ एक और आ गया, इन बिटवीन द रोज ऑफ जट्रोफा, सेकेंड ऑयल क्रॉप वी कैन गो, सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल क्रॉप। एक तो जट्रोफा से वी आर गोइंग टू गेट डीजल, बट सेकेंड क्रॉप दिस इज साइबेरियन मस्टर्ड, Camelina sativa. This is Siberian mustard, known as false flag. You can grow Siberian mustard in between. Jatropha bears fruiting in 3 years and come in full in 6 years. But this becomes intercropping of Jatropha with Camelina to enhance productivity potential per unit area is being carried, fits well. और इसकी लाइफ क्या है? In 2.5 years it is ready. Sorry, in 2.5 months it is ready. This mustard, Camelina sativa, Siberian mustard is ready in 2.5 months. और जैसे मस्टर्ड की तरह, तो you need not to wait for 3 years or 6 years. Immediately you are going to have Camelina seed for oil. Oil का भी structure, this is best oil. And in Jatropha there is 30 to 30, normally it is said 25 to 35% oil. मस्टर्ड आप एक्सपेल करते हैं, फिर आते समय कहते हैं 1/3 तेल निकलेगा। इसमें क्या होता है 25 to 35, but normally it is 30% in Jatropha, but in Camelina seed 40% oil is there. तो in 1 year there you can take 2 or 3 crops. एक साल में आप 2-3 क्रॉप ले सकते हैं, जिसमें इंटरक्रॉपिंग। नाउ पेस्ट ऑफ Jatropha, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये पेस्ट किसे कहते हैं? हार्मफुल एनिमल्स, मे बी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, मे बी इंसेक्ट, मे बी फ्लाइज, और मे बी ये नीलगाय, मे बी मंकी, मे बी यू एंड मी। जो ऑर्गेनिज्म दैट हार्म, ऑर्गेनिज्म में आ गया प्लांट और एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट हार्म आवर, दैट डैमेज आवर क्रॉप्स इज टर्म्ड एज पेस्ट। पेस्ट की डिफिनेशन में MSc में पढ़ाता हूँ, एंटोमोलॉजी, दैट इज डिफरेंट, वो आपको नहीं, बट फॉर सुपरफिशियल नॉलेज ट्राई टू अंडरस्टैंड any organism that damage our crop, clothing, food grain, furniture, ठीक है, that is called as pest. इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, Jatropha में इंसेक्ट लगते, अभी तक रिपोर्ट था नहीं लगते, बहुत कम लगते थे। और Jatropha being toxic कैन नॉट बी ब्राउज बाई एनिमल, इसको कैटल ग्रेज नहीं कर सकता, इसमें टॉक्सिसिटी होती है, कैटल नहीं ग्रेज कर सकता। कुछ इंसेक्ट लगते हैं, दिखा देते हैं, आपने देखा होगा पत्तियों में ऐसे, ये माइनर हैं। आपने कभी कभी सरसों के पत्तों में देखा होगा, सरसों के पत्तों में ऐसे ऐसे जिग जैग चलता हुआ सा कि नाग देवता अपीयर हो गए। ये हमारा ओल्ड नॉलेज था। किसी ने कह दिया नाग देवता तो वी स्टार्टेड, पूजा शुरू कर दी अपनी, और इसको मत खाना, नहीं जानवरों को मर जाएंगे। नाग देवता नहीं है ये, हम तब हमें नॉलेज नहीं था। वो क्या होता है, इंसेक्ट ऐसे यहाँ से घुस जाए, अंडा देगा, उसमें से लावा निकल के ऐसे जिग जैग खाता हुआ, चाहे कम एट द एज, यहाँ से फिर फ्लाई बन के निकल जाएगा। तो इट गिव्स द डिज़ाइन ऑफ स्नेक, इट लुक्स लाइक स्नेक। तो दिस इज लीफ माइनर। अब देखिए तमाम इंसेक्ट्स हैं, ये खाद डैमेज कर रहे हैं, वैसे आपके पूरा इंटायर प्लांट इज डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ टर्माइट, टर्माइट तो देखा हुआ, टर्मिटेरियम, टर्माइट को वाल्मीकि जी का सुना होगा, इतना ज़्यादा लीन हो गया कि उनके ऊपर टर्माइट ने घर बना लिया, दीमक ने। वाल्मीकि से हमारे वाल्मीकि जी इतना ज़्यादा पूजा में व्यस्त हो गए कि उनके ऊपर दीमक ने बना लिया। इसको क्या बोलते हैं? माउंट्स,
MOUND, mounds या termitarium. I was presenting my work in ministry. Some experts asked me, no, termite damages Jatropha crop. Termite is best enemy of Jatropha crop. Then I showed this slide and I asked him, no sir, termite is never damaging to Jatropha crop. Yes, very serious insect that damages so many crops, but not to Jatropha. And you guess how? कुछ सोच सकते हैं फिगर को देख के कि जट्रोफा को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा है। आपके अंदर क्रिएट करिए कि ये टर्माइट लगा हुआ है लेकिन जट्रोफा को नुकसान नहीं। यू सी हाउ ब्यूटीफुल प्लांट्स, विगरस प्लांट, अच्छा प्लांट यू आर लुकिंग। रीजन बिहाइंड आपको सोचना टर्माइट खाता क्या है, तभी समझ में आए। टर्माइट इज फाइबर, हमारा ये तो कॉटन का नहीं, जो कॉटन पहने ना आप, ये सेलुलोज खाता है। सेलुलोज किस में? घास में जी, घास में, प्लांट में, उसको खाता है। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ सेलुलोज अवेलेबल अराउंड, उसको खाता है। जट्रोफा टोल्ड यू कि जट्रोफा टॉक्सिक, उसको नहीं खाएगा। इट इज नॉट ग्रेस, इसको जानवर नहीं चरते। एंड मेक ए माउंड, देयर आर ब्यूटीफुल होल्स, होल्स की वजह से थ्रू दिस होल ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द प्लांट्स। in root oxygen is also supplied. One thing. Second thing, it is the best habitat or harbor place of so many animals. In Hyderabad, Secunderabad, where I worked, there is big size of python and cobra. अजगर और कोबरा खूब होते थे। वेरी इजीली दे यूज्ड टू लिव इनसाइड, बहुत आराम से रहते थे। तो टर्मिटेरियम इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट हार्बर प्लेस और हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो टर्माइट इज नेवर डैमेजिंग टू जट्रोफा। नाउ सेकंड जो हम चले थर्ड पर, आपका प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स में क्या होता है? आ गया मेन पोर्शन जो होता है डीजल एंड बायोडीजल। दोनों में डिफरेंस क्या है? डीजल मिट्टी का तेल, डीजल पेट्रोल सुना। दिस इज हाइड्रोकार्बन। थोड़ा फॉसिल फ्यूल बताया था, फॉसिल आई टोल्ड यू इट इज फॉसिल फ्यूल। और कैसे सिंथेसिस हुई? बाय द anaerobic decomposition of buried animal and plants under the ground, and it took millions of years and created diesel or biodiesel fossil fuel. फार्मूला फॉसिल फ्यूल हाइड्रो, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ज़्यादा नहीं, बस मोटा मोटा ताकि आपके दिमाग बढ़ जाए। डीजल इज हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसमें कार्बन कंटेंट 86% एंड हाइड्रोजन कंटेंट 13%। देयर इज ओनली टू केमिकल्स, बट टॉक अबाउट बायोडीजल, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन बायोडीजल देयर इज ऑक्सीजन because this is of plant origin or animal origin, plant या animal के origin। इसमें क्या है? कार्बन 76%, हाइड्रोजन 12.8% एंड ऑक्सीजन 12.9। दैट्स वाई बायोडीजल इज completely burnt in any machinery, whether you put in a car, scooty, put a tractor, put any car, bus, it is completely burnt, जल जाता है, no emission। इसमें बताया कि इसमें कोई आर्डरलेस होता है, महक नहीं होती, धुआं नहीं होता। और एक क्या होता है? इट डज नॉट कंप्लीटली बर्न होता है। इसको हम दिखाते हैं कैसे कैसे। आई देखिए, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, आई लीव इट, आपके लिए नहीं। प्रोसीजर ये भी हम छोड़ देते हैं। ये देखिए, जट्रोफा सीड टू बायोडीजल, जट्रोफा सीड से बायोडीजल कैसे बनता है। बीच में मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दैट इज बिग साइंस और यू हैव टू बी ए मैन ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम नहीं जाना चाहते, इसलिए सुपरफिशियल नॉलेज यू मस्ट हैव। ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जट्रोफा सॉइल, हमने सीड से जट्रोफा सीड को एक्सपेल किया, दो चीज़ मिली, केक खल जिसे कहते हैं, सेकेंड हमको मिल गया ऑयल, क्रूड ऑयल प्लस ऑयल केक, दो चीज़ मिल गया। अब दिस केक को हम अभी डिफरेंट यूज मिला देंगे। नाउ इस हम क्रूड ऑयल को हम न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर से। सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, हमारे साबुन में, कपड़ा धोने के साबुन में और नहाने के साबुन में क्या होता है?
एक में NaOH होता है, एक में KOH होता है। नहाने में NaOH होता है और धोने में दूसरा KOH होता है। सिंपल से कास्टिक सोडा, सुना कास्टिक सोडा, हम इससे न्यूट्रलाइज करते हैं कास्टिक सोडा से। देन वी गेट, इस क्रूड ऑयल को हम वी गेट रिफाइंड ऑयल, और जो धुल के आया जो बचा सोप केक बच गया, सोप केक। सोप केक से हम साबुन बना लेते हैं, और बेस्ट साबुन। अब फिर आइए देख रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल में फिर हमने मिथाइल अल्कोहल और फिर हमने अब KOH डाल दिया थ्रू मशीन। अभी दिखाना मशीन, हमको मिल गया प्योर बायोडीजल और दो प्रोडक्ट और मिल गए, मिथनॉल इसका बाईबैक मिल गया और इसका KOH मिल गया, प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो हम लोग लगाते हैं, हाथ मुंह में लगाते हैं अपने को ब्यूटीफाई करने, या ग्लिसरीन मेडिसिनल। तो हमको इतने चीज़ मिल जाते हैं। ऑयल, जेट्रोफा केक, इट इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर और बायोगैस बनाई जाती है, सोप केक, एंड हमको मिथनॉल KOH भी मिल गया और हमें ग्लिसरीन मिल जाती है। ये कैसे होता है? दिस सिंपल फॉर्म। नाउ दिस आवर मशीन, हमारा प्लांट था बहुत बड़ा प्लांट था, कैक्टिस के 1 टन हम पर डे हम बना सकते थे। नाउ क्या होता है, इसको भी हम आई लीव इट बिकॉज आपको थ्रू फिगर्स इफ आई टेल यू देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ यू सी यहाँ पे सीड फीडिंग इन एक्सपेलर, ये एक्सपेलर है ऊपर, ये देख रहे हैं बड़ा, जिसमें हम सरसों जैसे डाल देते हैं, सरसों डाल दे, ये सीड डाल दिया इसमें। सीड से एक तरफ से देख रहे खल निकल रही है, वी आर गेटिंग खल मीन्स केक, वो केक वाला नहीं है आपका जो बर्थडे केक, ये इसका है केक। दूसरी तरफ तुमको क्या मिला? वी आर गेटिंग ऑयल, एक तरफ से ऑयल मिल रहा है। अब ये हम ऑयल इसमें देख आराम से निकल रहा है, ये हम इसमें फिल्टर कर रहे हैं ऑयल को, सिंपल मशीन है वही। अब हम केक को हमने डाल दिया, NaOH डाल दिया, और NaOH डाल दिया, जो कास्टिक सोडा डाल दिया। डालने के बाद हमको क्या मिला? उसमें हमको सोप केक मिल गया, वो बनता चला जा रहा है। फिर KOH डाल दिया, हमको ग्लिसरीन मिलती जा रही है। ये देखिए प्लांट में आ गया, हमको रिफाइंड ऑयल मिल गया। रिफाइंड ऑयल, एक जब रिफाइंड ऑयल क्या होता है, सिंस इट इज प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट में पानी होता नहीं, पौधे में सीड में भी पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, तो मॉइस्चर हो सकता है। तो उस तेल को हम इसमें स्पैर्जर में डालते हैं, तो ताकि बुलबुले की तरह से सारा मॉइस्चर निकल जाता है। और देन वी हैव प्योर बायोडीजल हियर। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ यू सी द सीड स्टोर्ड, द बायोडीजल स्टोर्ड, और वी हैव प्योर क्रूड ऑयल, ग्लिसरॉल, पोटेशियम सल्फेट, बायोडीजल, हमको सब पूरा ये सब मिलता चला गया। हमने बायोडीजल का टेस्ट किया, मी एंड माई सेल्फ एट द स्टार्ट व्हाइल आई वाज वर्किंग, मैंने खुद किया कि लेटेस्ट फर्स्ट, ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं था। एक लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट किया, लेटेस्ट सी इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड बायोडीजल। हमारे पास दो वहाँ पे कैम्पको में एक पावर टिलर थे, देखा छोटे छोटे ट्रैक्टर आपने, कैम्पको में एक पावर टिलर, इसमें भी 5 लीटर डाल दिया, इसमें 5 लीटर, एक में हमने डाल दिया डीजल, एक में डाल दिया बायोडीजल, प्योर बायोडीजल, स्टार्ट कर दिया। यू सी डीजल ऑपरेटेड गेव द 1.5 आवर पर लीटर, 1 लीटर इतना घंटे चला, एंड बायोडीजल ऑपरेटेड इट गेव द रिजल्ट 2.5 आवर पर लीटर। दिस वाज द ब्यूटी, 2.5 आवर, 2.5 घंटा एज कम्पेयर टू लेस देन 2 आवर इन डीजल। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। नाउ सीड का है, सीड में देख रहे हैं डिसलिंग। अब सीड को जो ऊपर होता है, मूंगफली तो हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन जेट्रोफा में तोड़ने के लिए इतना तो है नहीं, आपको कमर्शियल बनाना है। तोड़ने के लिए हम डिसलिंग मशीन से कर, मशीन से हमारा एक तरफ और एक तरफ हमारा सीड निकल रहा है। ये इसका ये डिसलिंग के बाद इसके फ्रूट हस्क, जो ऊपर का छिलका निकल आता है, हम सीड फ्रूट हस्क को क्या किया, फ्रूट हस्क इज अगेन वी प्रिपेयर्ड फ्यूल ब्रिकेट्स, देख रहे ब्रिकेट, अच्छे ब्रिकेट बन गए, और उसको वी कैन पुट इन और बुखारी, इसको आग के रूप में, कोयले के रूप में, कहीं भी इसको जला करके हम कुकिंग एनर्जी बना सकते हैं, हाथ सेक सकते हैं, या हमारे जो काफ़ी जो फोर्सेज बाहर हैं ठंडे के इलाके में, उनको हम दे सकते हैं। ये नाउ ये फ्रूट केक्स देखें बहुत अच्छे आपके फ्यूल ब्रिकेट ये बन गई हैं, इसको हम आराम से सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी इट्स टॉक्सिसिटी, क्या टॉक्सिक तो नहीं इसका धुआं। हम कोयला जलाते हैं, आपने कई मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड एंड यू हैव रेड इन न्यूज़पेपर कि जब पहाड़ों में सर्दियों में जो कोयला जला रहे थे और वो उसके दम घुट गई, मर गए, वो दम घुट गई, मर गए।
तो उस तरह की स्टडी हमें इसमें भी करनी पड़ती है और वी हैव डन इट, इसमें हमने कर लिया है। अब देखिए, अब सोप केक को जो निकला, सोप केक को काढ़ा में लिया, देखिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मुझको, मी। अब इसको करके और हम सोप बना लिया, दिस बेस्ट वॉशिंग सोप, क्योंकि हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला है, क्यूएच भी डाला है, बेस्ट वॉशिंग सोप। अब देखिए दूसरा जो बना केक बनी, केक यानी खल से क्या किया हमने, खल से बायोगैस में डाल दिया। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गैस प्रोडक्शन फ्रॉम जट्रोफा के काउ, ज़्यादा काउ गोबर से बनाते हैं ना हम बायोगैस। हम जब जट्रोफा केक को 200 किलोग्राम इसमें डाला और जट्रोफा केक प्लस काउ डंग यानी गोबर को रेशियो में डाला 200 ग्राम 7:3 और काउ डंग प्योर 200 ग्राम, अलग अलग, एक में 200 kg जट्रोफा केक, एक में 200 kg काउ डंग, एक में दोनों मिक्सचर डाले। इसी तो गैस प्रोडक्शन आराम से। इसमें काउ डंग में वी आर गेटिंग 9.3 to 11.26 क्यूबिक मीटर और यहाँ पे देखिए 34 वेरी हाई। इसके कंपेरिजन इसका नियर अबाउट 4 टाइम्स गैस वी आर गेटिंग। इसमें भी हम अच्छी गैस पा रहे हैं, प्लस हमको वो मिल गई मैन्योर, गैस के अलावा जो बचा हमको बायो फर्टिलाइजर मिल गया। तो ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ जट्रोफा केक। नाउ अब देखिए आजकल जब जाड़ों में भी आए, अभी पत्तियाँ आ रही हैं, ऑल प्लांट्स आर ब्लूमिंग लाइक इन। जब जाड़ों में क्या होगा, पत्तियाँ झड़ने लगी, ऑटम में पतझड़ आ जाएगा। पतझड़ क्यों होता है, इस साइंस का सब्जेक्ट है। पत्तियाँ क्यों गिरती हैं, पत्तियाँ टहनी पे लगी होती ब्रांच पे, फिर पीली पर क्या हुआ, पत्ती और प्लांट ब्रांच के बीच में एक एसिड बन जाता है, एब्सिसिक एसिड। जब वो बन गया तो उससे पत्ती अपने आप झड़ जाती है। देखिए विंटर में देखा पूरे पौधे न्यूड हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। देखिए सी द नेचर क्रिएशन, नेचर का कितना, पत्तियां झड़ के ऑल लीव्स आर अराउंड इन द पेरीफेरी ऑफ प्लांट्स, इन द पेरीफेरी ऑफ प्लांट। सर्टेनली दीज लीव्स विल डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाएंगे और अगेन डिकम्पोज लीव विल इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। इसलिए नेचर ने जो कुछ भी दिया है, एवरीथिंग हैज बीन वेल मैनेज बाय नेचर। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा यूरिया, पोटेशियम, NPK या कोई भी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालने की जरूरत, नेचर ने ऑलरेडी दिया है। आपने जितना तो इस पेड़ ने दिया नहीं सॉयल से, उससे ज़्यादा इस पेड़ ने सॉयल को दे दिया इंटर्न। समझ में आ रही बात, और इसकी खाद बन गई। ले अब व्हाट टू डू, विंटर में हार्वेस्टिंग हो गई, नवंबर दिसंबर में पतझड़ हो गया। अब इसको भी हमने क्या किया, एक टेक्निक लगाई, गैसिफिकेशन। वी कट ऑल ब्रांचेज, सारे ब्रांचेज हमने काट दिया। नेक्स्ट टाइम बढ़िया से नई नई ब्रांचेज आ जाएगी। कट करके क्या किया, कट करके हमने गैसिफिकेशन अभी डाल दिए। ये देख रहे हैं पूरा, ये पत्ती झड़ गई और इसमें क्या करते हैं, बहुत वुड बायोमास प्रोडक्शन फॉर गैसिफिकेशन। 45 मैट्रिक टन पर है, मैट्रिक नॉट मिलियन, जैसे मैट्रिक टन, हर जगह मिलियन टन था, लेकिन यहाँ मैट्रिक टन, मैट्रिक मीन्स 450 कुंटल पर हेक्टेयर हमको मिल रहा है। पर हेक्टेयर हमको लकड़ी मिल रही है। क्या करता है, जट्रोफा रिमूव्स कार्बन। जट्रोफा क्या करता है, जट्रोफा ऑब्जॉर्ब, कल बता, इट ऑब्जॉर्ब 10 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप। एटमॉस्फेरिक कार्बन को ले लिया और इन रिमूव्स कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, स्टोर्स इन वुडी टिश्यू, असिस्ट इन द बिल्ड ऑफ सॉयल कार्बन। अब देखिए कार्बन को लेके अपनी बॉडी बना ली। इसकी बॉडी किससे बनी, हमारी बॉडी क्या है, इसकी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्लांट की, हमारी भी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बनी हुई है, इनकी भी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस में इसका खाना मिल गया, इसकी बॉडी बन गई और सॉयल की फर्टिलिटी भी बढ़ा रहा धीरे धीरे। अब आप देखिए अब कैसे करते हैं, गैसिफिकेशन। बायो फर्टिलाइजर में दूसरी गैस बन गई। बायो फर्टिलाइजर टेक्निक देख लिया आपने, देखा सारी बायोगैस में अलग से गैस बनती, देखा है, तमाम गाँव में भी देखा होगा, काऊ डंग डाल के भी डाल सकते हैं। अब गैसिफिकेशन में जैसे गैसिफिकेशन प्लांट, वो जो लकड़ियों को कट के लिए, वी चॉप्ड ऑल ब्रांचेज इनटू पीसेस, ये पीस को डाल दिया और पीस को डालने के बाद हमने मशीन में डाल दिया गैसिफिकेशन। आजकल बड़े बड़े हैदराबाद, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में या बिस्कुट फैक्ट्रीज वगैरह जो होती है, उसमें लकड़ियाँ सब इकट्ठा करके चिप्स वगैरह आ रहा मशीन से लेके
ये गैसिफिकेशन करते गैस में। इसमें देखिए 2 पाइप है, 1 पाइप 2 पाइप गैस इसमें डाल देने, इसमें डाल दिया है, ऐसे 2 पाइप निकाल, 1 पाइप जेनसेट में डाल दिया हमने, जनरेटर सेट, और 1 पाइप हम आप जहाँ पे एक्सपेलर में डाल दिया ताकि हमको पानी को बॉयल करना था। अब देखिए ये इसी को जो लकड़ियों को कट पीसेज है, कट पार्ट्स है, यानी उड बायोमास, जो बायोमास वाले बायोमास कोई भी पत्ती भी हो सकती है, सीड भी हो सकता है, यूएनबी भी हो सकते हैं, कोई भी करकास भी, हमारी हड्डी भी हो सकती है। तो उड बायोमास को हमने पूरा बर्निंग करके गैसिफिकेशन में 2 तरह की चीज़ पाई। एक तो हम हीटिंग कर लिया, हीटिंग, दूसरा हमने डीजल जेनसेट में डाल दिया। तो इसका फ़र्क क्या मिला, इसे अब कट रहा है, जा रहा है, ये मशीन में 2 चले, जेनसेट में गया, उसमें चला गया। इससे क्या हुआ कि हमको 2 तरह की गैस मिल गई, एक तो कुकिंग के लिए मिल गई, दूसरी हमको मिली, इससे हम लोग खाना भी हमने बनाया है, वी हैव प्रिपेयर्ड आवर फूड आल्सो, और गेस्ट को खिलाया। और हमें जेनसेट हमारा जो 4 लीटर, मान लो 4 लीटर जनरेटर में पर आवर लगता था, दैट हैज रिड्यूस्ड टू 2 ही, इस गैस को डालने में 2 ही लीटर में हमारा काम चल गया। तो दिस वाज द बेनिफिट, दिस वाज द बेनिफिट। अब ये आपको जो एक क्वेश्चन होता है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जानते हैं ना। और नाउ देयर इज ए न्यू टर्म, नॉट ए न्यू टर्म, ऑलरेडी अवेलेबल, प्रोड्यूसर गैस, सिन गैस और ग्रीन गैस, एक अक्सर आ जाता है। प्रोड्यूसर गैस, इसी को हम सिन गैस कहते हैं, इसको हम ग्रीन गैस कहते हैं। ये जो गैसिव निकली, जो हमारी गैसिफिकेशन से मिली, गैसिफिकेशन से बन रही गैस, ये सिन गैस है, प्रोड्यूसर। इसका कंपोजिशन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये इतनी चीज़ों से मिलकर के जो हम इसको वुड मास्क, बायोमास को जलाते हैं, तो दैट वी गेट प्रोड्यूसर गैस, एंड प्रोड्यूसर गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 गैसेज, एंड दिस गैस गोज इन द जेनसेट और इन द बॉइलिंग प्लांट, ये हमारे उसमें यूटिलाइज हो जाती है। नाउ केक में देख लिया कि नो प्रॉब्लम, केक ऑलरेडी बता दिया। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि केक में क्या होता है कि टॉक्सिसिटी होती है। केक को ऐसे हम जानवरों को, जैसे मस्टर्ड केक को जानवरों को खिला सकते, इसको नहीं खिला सकते हम, बिकॉज ऑफ कर्सिन एंड फार्बाल। कर्सिन एक प्रोटीन है, फार्बाल एक प्रोटीन है, जिससे टॉक्सिक जो भी खाएगा। मैंने अक्सर यू हैव रेड न्यूज़पेपर के बच्चों ने जेट्रोफा का फ्रूट खाया पीला पीला देख के और बेहोश हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी अवेलेबल इन द फ्रूट, मे बी इन द प्लांट, मे बी इन द केक, में भी इन द स्टेम आल्सो, खाने के बाद ऐसा हो गया। इसको हम लोगों ने डिटॉक्सीफाई कर दिया है, उसका पेटेंट भी कर दिया है, और कंपनी कोई आकर के ले जाएंगी और उसको, ताकि हमारा जो टॉक्सिक केक है ये एडिबल केक में बदल जाएगा। एडिबल केक, क्योंकि हम पोल्ट्री फीड बनाते हैं, देयर इज बिग पोल्ट्री फार्म इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिग डेयरी कैटल, डेयरी फार्म इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉल फीडिंग कराइए, नॉट ग्रेजिंग। ऑल दीज कमर्शियल पोल्ट्री फार्म एंड डेयरी कैटल्स आर फेड, आर स्टॉल फेड, उनकी स्टॉल फीडिंग, नॉट दे आर नॉट लेट लूज फॉर ग्रेजिंग। और पार्शियल लैंड नहीं, चारागाह में नहीं डालने जाने, चारागाह में नहीं भेजें। और वो अब फीड समझ लीजिए, कैटल फीड डेयरी जैसे बात आ सकती है कि पोल्ट्री फीड क्या है, आपने देखा होगा दाने दाने, एक बत्ती नुमा होता है, पेलेटेड फीड कहते हैं, जो तमाम अनाजों का फीड बनाया जाता है पोल्ट्री का, उसको बोलते हैं मेस्ड फीड, जो है जौ, व्हीट, फिश मील, प्रोटीन के लिए फिश में ग्राउंड नट डाले। लेकिन एक बात ना, बत्ती दुरा, बिल्कुल जैसे आपने फील कर, पतला पतला चाक के साइज़ का होता है, और रैबिट को डेयरी वाला बत्ती वाला भी मिलता है, डाल दीजिए बत्ती और खूब खाती है। मोलेसेस डाल देते हैं तो बत्ती बन जाती है, मोलेसेस नहीं डाला तो वो ऐसे मेश फीड दलिया टाइप का रहता है, मेश को दलिया वाला होता है, और मोलेसेस डाल के बाइंडिंग कर देते हैं मशीन की। तो इसको आजकल दिस फीड है, इसमें मेन बताना था, फीड का कंपोनेंट है व्हीट, बार्ले, मेज, 3 तो हैं ही हैं, व्हीट, बार्ले, मेज। बार्ले से फाइबर मिलता है जानवरों को, व्हीट से कार्बोहाइड्रेट, मेज से भी कार्बोहाइड्रेट। अगर हमको आपको फाइबर ना मिले तो हमारी ये तड़ियाँ अंदर से कट जाएंगी, अल्सर हो जाएगा। इसीलिए हमको मेडिकल एडवाइस है कि हम लोग खाने में फाइबर से भिंडी भी खाएं, तमाम ग्रीन फ्रूट्स भी खाएं, ये सब खाएं, हमको फ्रूट खाना ही खाना है, और यही होता है उसमें। नाउ लिव इट। हमने इसको व्हीकल में ट्रायल किया, अभी तो असली ट्रायल हुआ हमारा
ऐसे व्हीकल में जब ट्रायल किया, स्वराज मजदा में देखा गया, व्हीकल टेस्टेड फॉर मोर देन 20,000 किलोमीटर विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई स्वराज मजदा जानते हैं इसमें 20,000 किलोमीटर तक चली और देयर वाज नो हमने 20% नो नॉट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद द इंजन। नाउ फाइंडिंग्स, इंजन इज क्वाइट एमिनेबल फॉर यूज ऑफ बायोडीजल टू 20% तक। कोई हमने पहले ही बता दिया था कि 20% तक 20% ब्लेंडिंग डज नॉट नीड एनी चेंज इन द इंजन। अभी तक जितने हैं उसमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती है। नाउ इंक्रीज इन नाइट्रोजन ऑक्साइड बाई 1.2% बायोडीजल फ्यूल्ड इंजन। B20 फ्यूल्ड इंजन हैज़ लोअर कार्बन, यानी कार्बन आपने बताया कि इसमें इसकी मैक नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड मिशन कम है। और इसमें आएगा भी, देखिए हमने टैंक में भी इसको टेस्ट कर दिया, BMP में कर दिया, उसमें कर दिया, ये तमाम गाड़ियाँ हमने चला दी। नाउ लास्ट पॉइंट, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का, इसका क्या है, एनवायरनमेंट को क्या सेफ्टी होती है एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन आर लोकल, बट देखिए सपोज वी बर्न ए पीस ऑफ पेपर हियर, ओके, हमने जला के छोड़ दिया, और इट विल लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड। आवर बाउंड्रीज ऑफ 195-96 कंट्रीज आर बाउंड्राइज, वी आर बाउंड्राइज्ड। हमारे कंट्रीज जितनी हैं 96 196 उनकी वी हैव गॉट बाउंड्री। But the paper piece we burnt here emitted carbon dioxide, goes in there, it is beyond boundary, no boundary. It may go throughout the globe, कहीं भी के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। And the oxygen, air that we inhale, उसके साथ हमारे बॉडी में कार्बन। तो ये मत सोचिए कि हमने यहाँ जला दिया तो कोई देख नहीं है, पर हमने पराली जला दी इंडिया में तो अमेरिका से क्या मतलब। तो CO2 will reach एवरीवेयर थ्रू द एनवायरनमेंट, कहीं भी ग्लोब में चली जाएगी एंड विल डैमेज। जैसे बताया 190 कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, बिग आर स्मॉल, बाउंड्रीज आर फिक्स, बट द एयर दैट दे ब्रीथ इज शेयर। जो भी हम लेते हैं वो शेयर की जाती है। आपने अगर CO2 मिला दिया तो सबको शेयर करना है, नॉट कि हम इलाहाबाद में हम को हो रहा है बाकी लखनऊ में नहीं होगा। नो मैटर कंट्रीब्यूट्स हाउ मच टू द कार्बन डाइऑक्साइड बर्डन, बट ऑल नेशन सफर। इसमें सारे के सारे राष्ट्र को सफर करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रेट 3.15 टन पर टन। एक टन हम अगर डीजल जलाएंगे, डीजल मीन फॉसिल फ्यूल मीन्स हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन को जलाएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है, 3.14 टन। और करंट CO2 लेवल इन देर मोर देन 300, यानी 400, आपने बताया 0.04% या रादर इज 400 ppm। अभी हमारा ये है बायोफ्यूल्स आर कार्बन न्यूट्रल टू द एटमॉस्फेयर, यूज ऑफ बायोफ्यूल विल कंट्रीब्यूट द नेट गेन ऑफ CO2। इसमें क्या है, ये तो इतना निकाल रहा है, व्हेन यू बर्न 1 टन ऑफ बायोडीजल इट विल अब्जॉर्ब द सेम क्वांटिटी ऑफ CO2। इतना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा नहीं, निकलेगा नहीं इतना, तो हमको इससे सुलभता है हमारा एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं रहा है। 2 वेज ऑफ कार्बन इमिशन रिडक्शन, बायो एनर्जी कैन डिस्प्लेस फ्यूल। 2 तरीके से हमको कार्बन डाइऑक्साइड का हमको इमिशन में रिड्यूस कैसे, पहले बायो एनर्जी, बायोडीजल इज बायो एनर्जी। बायो एनर्जी कैन डिस्प्लेस फॉसिल फ्यूल को हम हटा देंगे तो हमको इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पर टन खत्म हो जाएगी। दूसरा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द लैंड में जो बताया, वुड मास, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायो फर्टिलाइजर, ये समय मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन लाइफ साइकिल देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या जलाया, बायोडीजल देख रहे हैं, बायोडीजल है ना, ये सारी क्या है, व्हाट इज दिस, बायोडीजल पर ये जला, एटमॉस्फेयर में गया और आराम से पौधे भी ले रहा है, बायोमास बना रहा है, फिर वही साइकिल यहाँ। बट इन केस आप ये डीजल में क्या है, उल्टा है, ये रिफाइनरी से निकल रहा है, जा रहा है, ये हमारे सबको डैमेज कर, धुआं निकाल कर सब डैमेज कर रहा है। CO2 साइकिल चलती है। नाउ लिव इट। एक है इनकम्प्लीट, हमने आपको बताया कि व्हेन हाइड्रोकार्बन मेड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन यानी डीजल burns completely, the oxygen in the air combines with the hydrogen to form water and with the, जब हम हाइड्रो का डीजल को जलता, हमारे मशीन जलता मीन्स हम मशीन में, स्कूटी में, कार में जलता है तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन।
तो कार्बन एटमॉस्फेयर में आएगा तो ऑक्सीजन से फिर कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों बहुत टॉक्सिक हैं, और हाइड्रोजन नहीं निकली वाटर से मिलकर जल बना लेगी। समझ में बात ना, ये जलाल बना लेती है। तो इस तरीके से हम इन द बर्निंग, इफ द बर्निंग इज इनकम्प्लीट, अब देखिए ये तो कंप्लीट बर्निंग में है, अगर हमारा डीजल पूरा जल गया तो कंप्लीट बर्निंग हुई, मशीन अच्छी है तो ये होता है। ये बर्निंग इज इनकम्प्लीट, व्हाट विल हैपन? आपने देखा आपके साइलेंसर के पीछे से धुआं, ब्लैक काला काला धुआं निकलता है, दैट इज इनकम्प्लीट बर्निंग। आपके पैंट या कपड़े काले हो जाते हैं, नहीं देखा, फुच फुच करके बोलता है, आवाज़ भी करता है, और कभी कभी चिपचिपा चिपचिपा आपके होश में लग जाता है। व्हाट इज दैट? उसमें कार्बन ऑक्सीजन यहाँ तो जो जला कंप्लीट में, तो कार्बन गोज इन द एटमॉस्फेयर कंबाइन विद ऑक्सीजन, CO2 बन गई, ठीक है। इन दिस केस इसमें कार्बन कंबाइंस विथ सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन कंबाइंस विथ कार्बन, C हो जाता है। यह सूट वो जो बहुत काला काला, वो C से O से नहीं जुड़ पाता, C यह सूट आपने फिल्मों में देखा होगा। लोग ले जाने के लिए कोई फिल्म में हमारे अमोल पालेकर साहब पुरानी मोटरसाइकिल स्कूटी खरीद लिया, तब स्कूटर खरीद लिया किसी को, हम ताकि कि वो हमारे साथ बैठे। अब लिया तो पहले दिन ख़राब हो गई, स्टार्ट हो गया तो इम्प्रेस ही नहीं कर पाया सारी, जस्ट टू मेक यू एनर्जाइज एंड वाई, क्योंकि उसमें सूट निकलने लगा काला काला, उसकी भी साड़ी काली है और बच्चे उनका भी पैंट खराब हो गया, सेम डे वो सब खत्म हो गया किस्सा। तो इनकम्प्लीट कंप्लीट बर्निंग समझिए, कंप्लीट बर्निंग में जो जला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इट गोज इन दैट, कार्बन कंबाइंस विद अगेन विद कार्बन ऑक्सीजन मेक कार्बन, हाइड्रोजन पानी से मिलकर बन गया। इनकम्प्लीट में कार्बन एंड कार्बन कंबाइंस इट मेक सूट, या कार्बन कंबाइंस विद वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनो, दैट इज वेरी टॉक्सिक। ये दोनों में, बायोडीजल में ये नहीं है, ये डीजल के साथ ही, सिर्फ डीजल के साथ है। दीज अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, तो हम ज़्यादा इसमें बैठ नहीं जा रहे हैं। अनबर्न कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाएगा क्या होगा, वही ओजोन लेयर को कैसे कैसे खत्म करेगी, इसको दोबारा नहीं। कार्बन आइटम्स कैन आल्सो रिमेन स्टक टू वन अनदर विद फ्यू आर नो हाइड्रोजन एटम अटैच, स्पेशली ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ डीजल फ्यूल प्रोड्यूसिंग सूट, वो जो बताया काला काला। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ जेट्रोफा कार्कास इन सॉइल क्वालिटी, सॉयल क्वालिटी का भी बहुत रोल है। देखिए सॉयल को कैसे इम्प्रूव करता है जेट्रोफा, आपको दिखा पत्तियां झड़ गई हैं और दोज लीव्स गेट डिकम्पोज बाय एरोबिक, एनारोबिक, बाय अर्थवर्म, बाय बैक्टीरिया, बाय माइक्रोबियल टेक्निक, समझ में, और वो जा करके वो आफ्टर डिकम्पोज इनरिच आवर सॉइल फर्टिलिटी। नाउ जेट्रोफा प्लांटेशन इंक्रीज द सरफेस इंटेग्रिटी ऑफ सॉइल्स, इंक्रीज द सरफेस इंटेग्रिटी ऑफ सॉइल्स, रूट्स प्रोवाइड डीप रीचिंग ओपनिंग ग्रेन्यूल्स आफ्टर सॉइल, जितनी रूट जाती है, इसकी सॉइल फैली हुई है, इसकी रूट्स देखा जो नीचे जाएंगे फैल जाती हैं। ये रूट्स क्या है, रूट्स क्रिएट होल्स, माइनर छोटी छोटी माइंस, लाइनें बना देती हैं। दैट इज़ द बेस्ट पाथ फॉर सॉइल वाटर इन्फिल्ट्रेशन। जितना गहरा, जितनी छेद होंगे मिट्टी में, वाटर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब जो सरफेस वाटर उसमें नीचे तक चला जाएगा रूट जोन में, हवा भी चली जाएगी, माइक्रोब्स भी बनेंगे। जो अर्थवर्म रहेंगे, अर्थवर्म हमने बताया, अर्थवर्म इज द बेस्ट सॉइल इंजीनियर, नॉट कंप्यूटर इंजीनियर, नॉट इलेक्ट्रिशियन। अर्थवर्म केचुआ जो होता है दैट इज बेस्ट सॉइल इंजीनियर। व्हाट डज इट डू? सॉइल लिव्स इन, अर्थवर्म लिव्स इन द सॉइल, मेक सॉइल पोरस ऑन वन हैंड, कड़ी मिट्टी को मुलायम कर देता है छोटे छोटे पोर्स में। सेकेंड, इट मेक्स होल्स, अ hole supports the infiltration of water inside the soil and oxygen. So that's why earthworm is called as best soil engineer. Soil engineer वाला अलग नाम है। Now soil erosion could be, soil erosion को रोक देता है। Increase in soil fertility would quickly lead to much better vegetation growth. Increase हो रही है। अब barren land में हम जैसे कल दिखाया, barren land में if you grow जेट्रोफा उस soil को और enrich कर देगा, and everywhere you can grow crop. Organic carbon stores in the soil would build up and support and stabilize agronomic leaves set during winter, ये ऑलरेडी बता दिया, विंटर में जो लीव बनती है दैट इज डिकम्पोज एंड फर्टिलाइज द सॉइल। नाउ एक और है बेस्ट, ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, PCS IS में भी क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट क्या है?
कार्बन सिंक सुना होगा आपने, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट। तो आपका क्वेश्चन आ गया, इसलिए हमने तैयार किया आपको। कार्बन क्रेडिट्स आर सर्टिफिकेट, समझ माइंड इट, कार्बन क्रेडिट आर सर्टिफिकेट issued to the countries that reduce their emission of greenhouse gases which causes। और ये कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है, उन कंट्रीज को दिया जाता है जो कंट्री ग्रीन हाउस गैसेज को घटाती हैं, जो ज़्यादा जोर देता है। जैसे मान लो हैदराबाद आपको पता है ट्री सिटी, नेचुरली घटाएगी। ये है कार्बन क्रेडिट्स आर। अब कैसे यूनिट को नापेंगे, कैसे क्रेडिट्स के सर्टिफिकेट किस बेसिस पे देंगे? अब किस कंट्री ने कितना कार्बन घटाया उसका मेजरमेंट क्या है? कार्बन क्रेडिट्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। कार्बन क्रेडिट का यूनिट है CER का, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। वो भी कैसे, अब CER कैसे नापा जाता है? ईच CER इज इक्वलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ तो हमको कितना मिलेगा? 1 CER, कार्बन इमिशन रिडक्शन। कार्बन ये क्या है? कार्बन क्रेडिट्स क्या है? सर्टिफिकेट है। और इस सर्टिफिकेट का मेजरमेंट क्या है? CER है, कार्बन सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। और CER का क्या है कि अगर एक कंट्री कोई 1 टन कार्बन रिड्यूस करेगी तो 1 यूनिट मिलेगी। ऑन एन एवरेज 1 हेक्टेयर जेट्रोफा 1 हेक्टेयर ऑफ जेट्रोफा प्लांटेशन ऑफ 5 to 6 years एज अब्जॉर्ब 10 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नापा गया है 1 हेक्टेयर जेट्रोफा plant can absorb 10 tons of carbon dioxide per hectare in of the atmosphere on the basis of। अब जो रेट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व का रेट गवर्नमेंट ये दे रही, कंट्रीज दे रही है, सब है, उसका रेट क्या है? ट्रेडिंग $7 पर टन। तो हमको कितना मिला? 10 टन हमारा जेट्रोफा जो है 1 हेक्टेयर जेट्रोफा एब्जॉर्ब 10 टन ऑफ CO2। 1 टन की कीमत $7। तो सो ऑन वी आर गेटिंग $70 पर हेक्टेयर हियर, जितना हम जेट्रोफा ने। दिस इज आवर इकोनॉमी। दो पैसा भी मिल रहा है, नाम भी, नामा भी, और काम भी हो रहा है। पैसा भी मिला, एटमॉस्फेयर भी शुद्ध हो गया, हमें जेट्रोफा से डीजल मिल गया। तो दिस इज द कार्बन। नाउ बायोडिग्रेडेबिलिटी, सपोज यू पुट बायोडीजल हियर, आपके घर में गिरा दीजिए, ज़मीन में गिरा दीजिए, तो काफ़ी दिन तक महकता रहता है, यू गेट स्मेल। बायोडिग्रेड नहीं होता है, इतनी आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होता। आपने प्लास्टिक ना, प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। इस सॉइल को हमारी पलूट कर रही है, सॉइल में पड़ी रहती है। कैसे पलूट? सॉइल में ये बायोडिग्रेड नहीं होती तो आवर पोरस, जो हमें बताया पोरस क्वालिटी ऑफ सॉइल, जो छेद होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है। वाटर कैन नॉट रीच टू द रूट जोन, इस तरीके से होता है। तो ये प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडीजल डिग्रेड्स अबाउट 4 times फास्टर दैन पेट्रोलियम डीजल। पेट्रोलियम डीजल ये 4 गुना तेजी से बायोडिग्रेड होता है। विद इन 28 days प्योर बायोडीजल डिग्रेड्स 85 to 88%। ब्लेंडिंग बायोडीजल विद डीजल फ्यूल एक्सेलरेट्स इज बायोडिग्रेडेबिलिटी। अगर डीजल में डाल दे तो ये और एक्सेलरेट कर देती है इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्लेंड्स ऑफ 20% बायोडीजल एंड 80% डीजल, 80% डीजल एंड 20% बायोडीजल। अभी हमारा प्लान 218 का जो बायोफ्यूल, हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो हमारी है भारतवर्ष की, आप 2000 व्हाट डज इट से 20% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल विथ, अभी क्या है हमने कल बताया था, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ डीजल विथ बायोडीजल विथ डीजल। ये पॉलिसी ना। तो अभी हम 20% जब डालेंगे 80% डीजल तो फ्यूल डिग्रेड ट्वाइस एज फास्ट एज। हमारा प्लान है 20% बायोडीजल डालने का, लेकिन अभी पॉलिसी ना कि इतना बायोडीजल हमारे पास पैदा नहीं हो पा रहा है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं। नाउ बायोडीजल क्वालिटी, बायोडीजल फ्लैश पॉइंट इज टिपिकली हाई। क्वालिटी इसका फ्लैश पॉइंट बहुत हाई है, जल्दी इसमें आग लगने की संभावना नहीं है। डोंट think it will burn like a matchstick. The sulfated ash test ensures the removal of all the manufacturing catalyst. Acid number, leave it, हम main point पढ़ते हैं। Biodiesel generally contains less than 15 ppm of sulfur and test for देखिए 15 ppm
sulfur and test for low sulfur fuel. डीजल में इट इज़ 50 ppm. इन डीजल सल्फर डाइऑक्साइड जल्दी, आपने सुना है कि जब कोयला जलाया जाता है, आप जला के देखो, ये इंजन का कोयला जो ले आते हैं लोग, रेलवे इंजन का जलाते हैं ना कालो, उसमें येलो कलर का निकलता रहता है फ्लेम ग्राम, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, वेरी टॉक्सिक, उसी से दम घुटने से लोग मर जाते हैं. तो बायोडीजल में 15 ppm एज कम्पेयर टू 50 ppm ये हो गया. बायोडीजल डज नॉट कंटेन एनी एरोमेटिक, कोई फ्लेम, कोई अरोमा नहीं होता, कोई महक नहीं होती है. एनीवे ये मिल्की लेयर. अब एक चीज़ और है, बायोडीजल को आप जब डीजल में मिलाएंगे, बायोडीजल को डीजल मिलाएंगे तो एक टेक्निक ब्लेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक से बैठता नहीं है, एक बीच में लेयर बना लेगा. तो आप उससे घबराइए नहीं, उसको थोड़ा स्टीरिंग कर दीजिए आराम से. ड्यूरिंग विंटर ये सेटल हो जाता है नीचे को, फिर आप स्टीरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत. हमारा डीजल भी फ्रीज कर जाता है. हम पहाड़ों में देखें कि डीजल को 4 बजे रात को बसेस के नीचे बेचारे कंडक्टर जल के आग जलाते थे, गर्म करते थे, तब कहीं जाके उनका ये होता था. नाउ ब्लेंडिंग. अदर इफेक्ट्स ऑफ बायोडीजल. बायोडीजल आल्सो कैन इफेक्ट सम सील्स. सील्स मतलब वो सील वायरस और व्हेल नहीं, सील्स जो हमारी गैस्केट होती हैं रबर के इंजन में लगी होती है, सील, गैस्केट एंड एडहेसिव, पार्टिकुलरली दोज मेड बिफोर, जो 1993 के पहले जो व्हीकल बनी है उसमें. अब तो वो खैर डिस्कार्ड हो गई, अब तो नियम आ गए हैं कि 12-14 साल के बाद तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, शायद आई थिंक 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होता. तो अब वो नहीं, पहले जब हम लोगों ने डेवलप किया थी, प्रॉब्लम थी कि गैस्केट प्रॉब्लम होती थी, ख़राब हो जाती थी. एंड दोज मेड फ्रॉम नेचुरल नाइट्राइड, वो एक जो नेचुरल नाइट्राइड रबर की बनी हो तो ख़राब हो जाती थी, गैस्केट रबर की बनी होती है. मोस्ट इंजन मेड आफ्टर 1999 हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद गैस्केट्स एंड सील्स दैट आर जनरली बायोडीजल रेसिस्टेंट. अर्लियर इंजन मॉडल्स आर rebuilds may use older gasket and seal materials and present a risk of swelling, leaking. होता क्या था, बायोडीजल जो 1993 नाइट्राइल रबर की बनती थी, वो डीजल में थोड़ा फूल जाती है. फूलने से क्या होता है कि आपकी टाइटनेस खत्म होने से देयर में भी एनी डैमेज टू द इंजन. फ्यूल पंप्स में कंटेन रबर वाल्व दैट में फेल, और रबर वाल्व भी हमारे फेल हो जाते हैं, लीक होने लगते थे. ओरल टॉक्सिसिटी एंड स्किन इरिटेशन. ओरल, मुंह में आप पेट्रोल तो नहीं पी सकते, डीजल नहीं पी सकते, ओरल टॉक्सिसिटी हो जाएगी. एंड स्किन में छुएगा, कटा फिटा है तो ऐसे भी टच करते, तो ड्राई लोग टेक्नीशियन तो करते रहते, बट यू एंड मी कैन नॉट. इसमें क्या है, बायोडीजल इज नॉन टॉक्सिक एंड नो हजार्ड, एंटीसिपेटेड फ्रॉम इंजेक्शन. अगर आप पी भी लेंगे तो नथिंग वुड हैपन. आप सिंपली 2-3 ग्लास पानी से कुल्ला करें, इट विल गो अप, कुछ नहीं होना, नथिंग टू हैपन. इट इफ इंजेस्टेड गिव 1 or 2 ग्लास ऑफ वाटर. अगर पी लिया तो 1-2 गिलास पानी लिए. If gastrointestinal symptoms develop, consult डैमेज. अगर कबाइद ज़्यादा अंदर चला गया है, 2 तरह से होता है ना, एक अंदर ऊपर ही है इंटेस्टाइन में जाके अगर एब्जॉर्ब हो गया सिस्टम में, तो आपको मेडिकल डॉक्टर से करें. जैसे आप इंसेक्टिसाइड से इस्तेमाल करते, सपोज यार नुआन छिड़क रहे खेतों में, नुआन किसी ने पी लिया, अच्छा नुआन से काफ़ी लोग सुसाइड कर, नुआन आपने पी लिया, व्हाट विल हैपन. एक तो इंटेस्टाइन में जब तक पड़ा है तो यू कैन गो फॉर लेवास, मतलब वोमिटिंग करा के दूर कर सकते हैं, उसको नमक और तमाम चीज़ें केमिकल खिला के आप उसको वोमिटिंग से दूर हो जाएगा. नहीं होता तो आप ट्यूब डाल के उसकी निकाल सकते हैं. बट सपोज इट हैज़ गॉन इन द इंटेस्टाइन से आपके ब्लड सिस्टम में चला गया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. तो आपके लिए तमाम इंजेक्शन एट्रोपिन के किए जाते हैं. 2 टाइप के होते हैं, एक अंदर पड़ा ठीक है, अंदर ऑब्जॉर्ब हो गया, तो दोनों में. इसमें क्या है ना, बायोडीजल प्रोड्यूस वेरी माइल्ड इरिटेशन. यूज पीवीसी कोटेड ग्लोव. आपके स्किन में बहुत माइल्ड इरिटेशन बहुत कम होता है, बेहतर है कि पीवीसी का आप ग्लोव लें. स्प्लैश बिल्डिंग. बायोडीजल इज स्लाइटली हेवियर देन पेट्रोलियम. हैवी क्योंकि ऑक्सीजन भी होता है, प्लांट प्रोडक्ट है, हैवी होता है. हैवी इसलिए नीचे बैठने की कोशिश करता है. नीचे अगर डीजल मिलाएंगे तो बैठने, उसको सिंपल टेक्निक है, स्टीयरिंग कर दी, हिला दीजिए. Biodiesel should be splash blended on top of petroleum diesel, or its phase may not mix properly. In case biodiesel has been added to the bottom of the tank and it did not mix with the petroleum diesel, options are find a way to agitate the fuels. आप agitate मतलब उसको हिला दीजिए, अपने टैंक को आराम से मिल जाएगा. जो आप पम्प द fuels out, एक बार पंप करके फिर से दोबारा आप भर सकते हैं.
कोल्ड वेदर ब्लेंडिंग एंड स्टोरेज, कोल्ड में जमता नहीं है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है काफ़ी नीचे तक हुआ है, इसमें जमा नहीं है। लाइक एनी डीजल भी आपका जो जमने लगता है बसों में, देखिए जाड़ों में हम बताएं। लाइक एनी डीजल फ्यूल बायोडीजल कैन जेल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नीचे जमने लगा। आपने सरसों का तेल अगर रख दीजिए घरों में बॉटल में, ग्लास बॉटल में, आप देखें नीचे एक लेयर जैसे जमने लगती है, वो भी जमने लगता है। तो नेचुरल केमिकल है। सम टाइप्स ऑफ बायोडीजल फ्रीज एट हायर टेम्परेचर देन अदर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। प्योर बायोडीजल एंड इट ब्लेंड्स विद डीजल शैल बी स्टोर्ड एट लीस्ट 15 डिग्री फ़ारेनहाइट एबव द पोर पॉइंट ऑफ द फ्यूल। आप इतने डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी स्टोर कर सकते हैं और जमेगा नहीं। आप जमे मैंने आपको माइनस की इतना डिग्री मीन्स माइनस, इन डिग्री सेल्सियस इज माइनस। प्योर बायोडीजल एंड ब्लेंडेड फ्यूल्स कैन बी स्टोर्ड अंडरग्राउंड। आप ज़्यादातर कोशिश अंडरग्राउंड, तो डीजल और बायोडीजल दोनों इसको भी अंडरग्राउंड कर सकते हैं। हीट द फ्यूल टू अबव 100 अंटिल द क्रिस्टल। जब बायोडीजल जमता है छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। सरसों के तेल में देखा है जैसा लगता है कुछ लहरा रहा है, बोतल में देखा होगा, इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं। उसको हीट करिए, अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। सॉल्वेंसी, किसके साथ सॉल्वेंट बनाया जाए? ए माइल्ड सॉल्वेंट। ऑन प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ पेंटेड सरफेस इट में डिफेस सम पेंट्स। अगर इसको क्या है कि बायोडीजल को, डीजल किस में रखा जाता है आपने देखा? टैंक में। पेट्रोल किस में रखे? टैंक में। जो आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम सब देखा है और इंडियन ऑयल देखा है या भारत पेट्रोल पंप, बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में। लेकिन जो बाहर तमाम रखे रहते हैं, हमने अंटार्कटिका गए थे, अंटार्कटिका में टैंक में ले गए थे। पहले टैंक किसके होते थे? आयरन मेड होते थे। अब क्या आ गए? पीवीसी के बढ़िया आ गए हैं। आयरन मेड में देयर वाज प्रॉब्लम, करोजन हो जाता है। कोई भी से बायोडीजल डीजल दोनों से करोजन होने लगता है, तो उसके लिए बदल दिया गया। हम पीवीसी को ले सकते हैं ताकि टू अवॉइड एनी करोजन और मेटल या पेंट से पेंट भी डिजॉल्व हो जाता था। बायोडीजल हैज टेंडेंसी टू क्लीन आउट द स्टोरेज टैंक्स इंक्लूडिंग व्हीकल फ्यूल टैंक। लीव इट। ओल्डर द सिस्टम पुअरर द मेंटेनेंस। थिकर द, जितना ओल्ड सिस्टम होगा उतना पुअर मेंटेनेंस होगा, उतने थिक आपको नीचे सेडिमेंट जमता चले जाए। जितना पुराना बैरल आपने देखा होगा गाँव में, उतना इसमें आप देखा उसकी दीवार से झड़ के आयरन पपड़ियाँ नीचे पड़ी रहती है। ठीक है, लीव इतना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। मटेरियल कंपैटिबल, किस मटेरियल के साथ कंपैटिबल है? ब्रास, ब्रांज, लेड, टिन, कॉपर एंड जिंक विल ऑक्सीडाइज डीजल एंड बायोडीजल फ्यूल्स एंड क्रिएट सेडिमेंट्स। समझ में? ब्रास का होगा, ब्रांज का, ये जो आपके बैरल या गैलन होते हैं, इसके होंगे तो ऑक्सीडाइज करके इट विल क्रिएट सेडिमेंट्स, नीचे तलैटी में बैठ जाएगा उसका सेडिमेंट। लेड सोल्डर्स एंड जिंक लाइनिंग शुड बी अवॉइडेबल as should be copper pipes, brass regulators and copper pipe. The fuel or the fittings will lead to change color and sediments may form result in plugged fuel filter. Affected equipment should be replaced with stainless steel. हम क्या करते हैं आज स्टेनलेस या एल्युमिनियम में करेंगे तो नथिंग वुड हैपन। इट्स चीपर एंड वेरी पोर्टेबल, वेरी इजी टू हैंडल। इसमें स्टोरेज टैंक मटेरियल इंक्लूड एल्युमिनियम, स्टील, आजकल आ गया फ्लोरिनेटेड, सबसे बढ़िया फ्लोरिनेटेड पॉलीइथाइलिन, पीवीसी होता है, फ्लोरिनेटेड पॉलीप्रोपाइलिन एंड टेफ्लॉन। तो इसलिए स्टील की भी जरूरत नहीं है, अब नए नए सिस्टम आ गए। नाउ कंपोजिशन इंफॉर्मेशन। बायोडीजल कंटेन्स वैरायटी ऑफ फेम विथ कार्बन चेन लेंथ वेरिंग बिटवीन। ये हमको आपको बताना था कि डीजल और कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन का, और बायोडीजल है CHO है, तो इसमें कार्बन कितना, हाइड्रोजन है C12। दैट इज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, आई वुड नॉट टच, इट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। हैंडलिंग एंड स्टोरेज। स्टोर इन क्लीन, कहाँ करेंगे? स्टोर इन क्लीन, ड्राई, अप्रूव्ड डीजल इक्विपमेंट बिटवीन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 120 फ़ारेनहाइट। कीप अवे फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक्सेसिव हीट एंड इग्निशन। आप लाग वाग से तो दूर रखना ही, तो पता है कि जलता तो ही है, इसको थोड़ा दूर से रखना। स्टोर एंड यूज इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, हवादार जगहों में आप इसको स्टोर करिए। डू नॉट स्टोर आर यूज नियर हीट। स्टोर आउट ऑफ द सन, सूरज से थोड़ा धूप लगने तो ऑपरेट होता है, में क्रिएट एनी प्रॉब्लम। डू नॉट पंक्चर ड्रैग
आप डम को बताया जाता है कि नपुंसक ड्रैग नहीं करना है, कोशिश करिए कि ढंग से उठाइए, लिफ्ट करिए, ऐसे ड्रैग के खींच के लुढ़काते हुए ले जाते हैं ना, वो नहीं करना है इसको। नाउ इनहेलेशन, नेग्लिजिबल डेंजर, अगर आपके अंदर चला गया कोई बहुत नेग्लिजिबल डेंजर, अनलेस हीटेड टू प्रोड्यूस, अगर गर्म हीट ले लिया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। बाहर जो गर्म कर धुआं लेंगे तो सर्टेनली इट विल गो इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अदरवाइज सिंपल इनहेलेशन डजंट हार्म यू। वेपर्स आर फाइनली मिस्ड मटेरियल्स, मिस्टर मटेरियल में इरिटेट द म्यूकस में, मतलब जो आप गर्म करेंगे तो मिस्टिंग होती है, हीट वेपर्स होती हैं बाहर, और हमारे जो जैसे लंग की लेयर्स को अंदर को वो डैमेज कर देती हैं। इफ़ दिस आकर्स रिमूव टू फ्रेश एयर, अगर किसी इंसान को हो जाती है उसको सबसे पहले बताया जाता है फ्रेश एयर में ले जाओ, चाहे इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग हो या पेट्रोल डीजल पर, आप उसको क्या करें, पहले फ्रेश एयर में ले जाओ, उसके कपड़े खोल दो, उसको कोशिश करो हवा देने की, कॉल ए डॉक्टर, देन आप वो डायग्नोज करके निकालेगा। आई कॉन्टैक्ट में काज इरिटेशन, में काज आँख में थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, लगेगा हल्का सा। इरीगेटेड आई विथ वाटर, अब क्या अगर आँख में लग गया तो वेरी सिंपल, ऐसे पानी का छप्पा मान लीजिए अपने, इरीगेट आइज, आप देख रहे हैं 15-20 मिनट 15-20 मिनट अपनी आई को इरीगेट कर दीजिए, मार दीजिए, सब दूर हो जाती है। सीक मेडिकल असिस्टेंट इफ सिम्टम्स, पर से अगर ज़्यादा वो नहीं जाता कि नहीं बना हुआ सिम्टम्स तो यू कैन कॉन्टैक्ट। यूज सेफ्टी ग्लासेज, गॉगल्स आर फेस शील्ड टू प्रोटेक्ट। फेस शील्ड तो आपके लिए नया शब्द है ना, फेस शील्ड बहुत पुराना शब्द है, हम कब से 2000 से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और फेस शील्ड है, फेस मास्क है, फेस शील्ड है, आप गॉगल्स है। फेस शील्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, इन सबसे बड़े गॉगल्स लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। नाउ फायर फाइटिंग मेजर्स, फायर फाइटर्स शुड यूज सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus to avoid exposure to smoke and vapor. Combustion produces CO, carbon monoxide and carbon dioxide along with thick smoke. अगर जलता है तो देखिए इसमें कार्बन मोनो CO और CO2 में O2 दो ऑक्सीजन है। CO इज मोर डेंजरस, मोर टॉक्सिक एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। फायर में भी एक्सटिंग्विश्ड, आपने देखा सेफेक्स के लगे होते हैं आग बुझाने के अंदर, सिलेंडर घरों में लगा होता है, तमाम सेफेक्स एक कंपनी है, सेफेक्स कोई सिलेंडर, सेफेक्स कंपनी का नाम। ऐसे कई कंपनियां आ गई, लाल सिलेंडर रखे होते हैं, आग लग गई तो कैसे उसे बुझाने, एक्सटिंग्विशिंग फायर, उसको बोलते फायर एक्सटिंग्विशर। कंबसन फायर में भी एक्सटिंग्विश विद ड्राई केमिकल, फोम, हेलोन, CO2 और वाटर स्प्रे। अब वो सिलेंडर में अलग अलग चीज़ें भरी होती, माइंड इट, आग की अलग है, केमिकल को में आग लगी बुझाने के लिए, लकड़ी में आग बुझाने के लिए, सब में अलग, कोई किसी में फोम डाला जाता है, किसी में स्प्रे पानी डाला जाता है, CO2, वो सब अलग अलग है। यूज वाटर स्प्रे टू कूल ड्रम्स एक्सपोज टू हीट, आर अगर ज़्यादा गर्म हो गए तो आप उसको ड्रम को इस्तेमाल करिए, पानी, ठंडे पानी को। नाउ हम लोग ख़त्म होने पे आ रहे हैं, आई थिंक आज बहुत टाइमली फिनिश कर देंगे, एंड यू पीपल फील हैप्पी। और थोड़ा से आई थिंक दिस सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री यू मे नॉट बी मोर इंटरेस्टेड, और आपको ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं किया होगा, बट नाउ यू विल एंजॉय। कैसे? बायोडीजल स्लोगन जो मैंने दिया, हम देना स्लोगन बहुत देते हैं त्रिपाठी जी में, मैं सोचता हूँ कि कोई नई चीज़ दिया जाए। दो माई स्लोगन्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, कोई हमारे नाम के आगे नहीं नीचे निकाय, महात्मा गांधी जी ने कहा, अब आप लोग दे दो, दूसरी बात है। इको क्यूब, इको क्यूब, 3 इको हैं इसमें। बायोडीजल कुड बी बिनाइन सोल्यूशन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, EC, एनर्जी कंजर्वेशन, इकोनॉमी, रूरल एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, 3 चीज़ों का कंजर्वेशन करता है। एनर्जी कंजर्व कर रहा है, इकोनॉमी कंजर्व कर रहा है, बढ़ा रहा है, और इन्वायरमेंटल, 3 चीज़ों को ये करता है, जैसे हमने इको क्यूब कर दिया। नाउ फार्मर्स कैन ग्रो ऑल आवर फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। अब इसमें क्या हुआ, फार्मर्स, अब आप समझ में ही नहीं, फार्मर्स विल बी एबल टू ग्रो फ्यूल, फर्टिलाइजर, सोप, ग्लिसरीन, बायोगैस, बायोडीजल, फ्यूल ब्रिकेट्स, everything can be grown by farmers, no need of drilling and mining of oil wells। तेल के कुओं की ड्रिलिंग एंड माइनिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, अगर हम लोग इतना इसमें आगे स्टेप स्पीड अप एंड स्टेप आउट, स्टेप हेड, सर्टेनली वी विल बी एबल टू।
नाउ एनर्जी सिक्योरिटी पॉसिबल थ्रू एनर्जी क्राफ्ट. अब नाउ एनर्जी सिक्योरिटी, अब फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में दिखाया था एनर्जी सिक्योरिटी इज मोर being more focused, that has become international issue. तो एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू क्राफ्ट, एनर्जी क्राफ्ट, जैसे गेहूं चावल उगाया जाता है इस तरीके हमारे किसान उगाएंगे. एंड ग्रो फ्यूल एनर्जी फ्रॉम ग्रीन. अब फ्यूल एनर्जी अब कैसे होगी? खाना पकाने की, बिजली जलाने की मोटर चला, हम अपने जो फार्मर ग्रीन प्लांट से हम उगा लेंगे. इसलिए हमारा टाइटल है बायोडीजल एंड अल्टरनेटिव ऑफ बायो फॉसिल फ्यूल थ्रू प्लांट्स. राइट नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दें. एविएशन में आप सोचेंगे कहाँ उड़ा जहाज़, तो उड़ा नहीं कहीं. इन्होंने बता तो दिया जहाज़ किसी ने उड़ाया नहीं. पढ़िए इसको, कैन यू रीड आउट? नीचे वाला पढ़िए. न्यूजीलैंड फर्स्ट एयरलाइन टू फ्लाई एन एयरलाइन ऑन बायोडीजल जट्रोफा B50. यानी हम वी आर टॉकिंग अबाउट 20% ब्लेंडिंग. आवर कंट्री इज टॉकिंग अबाउट 20. वी हैव प्लान टू ब्लेंड 20% बाई 2030 तक हमको करना है. ऑलरेडी 50% जट्रोफा बायोडीजल हैज बीन यूज्ड. ये उड़ा दिया इन्होंने. उड़ रहा है नहीं उड़ रहा? कैन यू सी? ठीक है, ये 2008 में यानी 13 ईयर्स बैक वर्जिन अटलांटिक बोइंग फ्लाइंग ऑन जट्रोफा B20 यानी 20% ब्लेंडिंग. देखिए उड़ा रहे हैं. जापान एयरलाइन जट्रोफा बायोडीजल B50 यानी ब्लेंडिंग 50% ब्लेंड करके उड़ा दिया. जापान एयरलाइंस फिर से आ गई. ब्लेंड बायोडीजल डिराइव फ्रॉम कैमेलिना 84% एंड जट्रोफा एंड एल्गी. कैमेलिना याद है, हमने बताया इंटरक्रॉपिंग में कैमेलिना में 40% होता है. साइबेरियन मस्टर्ड जो दिखाई थी उसमें 40% वी गेट. ये आएगा, क्वेश्चन है, माइंड क्वेश्चन बन रहे हैं सब आपको. 40% उसमें वाला, तो उसकी से लेकर 40% 84% ऑयल फ्रॉम कैमेलिना एंड 16% जट्रोफा एनर्जी डीजल से निकाल के उड़ा दिया. नाउ US एयरफोर्स फाइटर 22 फ्लाइंग ऑन कैमेलिना बायोडीजल B50%. US एयरफोर्स थंडरबोल्ट फ्लाइंग ऑन, ये जो है ना B50 पे उड़ रहा है. ये कैमेलिना है. पहले वाले में जट्रोफा कैमेलिना 50% में है. अभी हम कैमेलिना ग्रो कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू से व्हेन आई वाज इन जॉब आई वाज गिवन 10 सीड्स फ्रॉम रशिया साइबेरिया. हमको लोन किसी तरह माई डिपार्टमेंट गॉट ट्राइड टू मैनेज इट टू 10 सीड्स आई वाज गिवन इन 2007-8 का 2000 हार्डली 12-13 ईयर्स बैक. वो दाने ऐसे थे जैसे कोई चीज़ मेरे लिए तो बचा के सोने चांदी और हीरे से भी ज़्यादा रहा. स्टार्टेड ग्रोइंग ऑल प्लांट एंड नाउ वी हैव बीन एबल टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस कैमेलिना एवरीवेयर एंड पीपल हम लोगों से खरीदना शुरू करने मानने लगे. तो ऐसा नहीं, इफ़ यू हैव समथिंग. गल्फ स्ट्रीम कैमेलिना बायोडीजल B15 पे उन्होंने गल्फ वालों ने भी उड़ा दिया. बायोडीजल कार्निवाल जनवरी 2009 US ने ये कैसे किया? 2-सीटर प्लेन फ्यूल्ड बाय 100% बायोडीजल. देखिए 100% बायोडीजल डिराइव फ्रॉम एल्गी. एल्गी से भी, एल्गी का हमने नहीं दिखाया क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा. एल्गी पे भी हमने कहा हमारे यहाँ काम हमने किया है. algal biodiesel, क्योंकि algal biodiesel is more prospective, that has more why Jatropha community will require land we are already getting reduced every over year, but algae 75% water, मतलब stretch is only and only water where algae is aquatic plant and globe में 75% क्या है total plant है. तो algae का scope बहुत ज़्यादा बनता है. Where we can grow algae, we need not growing algae in ponds and lakes. We can get algae from the oceans to produce. वहाँ ocean का scope बहुत ज़्यादा है. आपसे मैंने बताया ना, our atmosphere is full of energy. I don't know what are those. अभी तो 8-9 तरह की मैंने आपको एनर्जी सोर्स बताए थे. So many energy. अभी हम कैसे हार्वेस्ट करेंगे हमको पता भी नहीं है. Boeing 7 Dreamliner has made the first biofuel powered aircraft crossing of the Pacific Ocean. Pacific, North Pacific, South Pacific देखा तो है ना, प्रशांत महासागर.
B50 डिराइव फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल। अब देखिए एक क्वेश्चन है, B50 डिराइव फ्रॉम यूजिंग कुकिंग ऑयल। अब देखिए हम आपको बताया कि हमारे पास इस बायोडीजल बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम जेट्रोफा पंगामिया, हमारा एक पंगामिया प्लांट है जो है भारत में बहुत तेज़ी चल रहा है। अभी इंडिया है प्लान की इंडिया का सोचना है कि जेट्रोफा को हटा करके एंड बायोडीजल मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम महुआ पंगामिया, एक पौधा बहुत अच्छा है उससे करने हैं। और ये और प्लांट है, महुआ है, नीम है, पंगामिया है। जेट्रोफा के देर आर सर्टन रीजन्स बट ऑलवेज आई गिव एम्फेसिस एंड प्रोवोक नो, जेट्रोफा मस्ट बी देयर कि जेट्रोफा विथ सो मेनी वेराइटीज कैन प्रूव इट सेल्फ एज एटॉमिक प्लांट। जो एटॉमिक पावर होती है, सारी तो पावर है जेट्रोफा में। आई हैव सोन सो फार, जेट्रोफा में क्या नहीं है, एवरीथिंग यू आर हैविंग, इट मे प्रूव इट सेल्फ एज एटॉमिक प्लांट इन माई ओपिनियन। तो अब नीम में है, इतना बड़ा बड़ा प्लांट कब तैयार होगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कब होगी, महुआ कब फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा, या पंगामिया बहुत बड़े ट्री होते हैं, ठीक है, विल गिव यू हाइड, लेकिन इट इज टाइम टेकिंग प्लांट। नाउ हाँ, कुकिंग ऑयल में बना, अभी हमारे पास भारतवर्ष में कर्नाटका आंध्रा में तमाम बड़े बड़े फैक्ट्री ऑयल हैं, ये बायोडीजल सप्लायर हैं। आप जितना एज मच क्वांटिटी रिक्वायर दे विल सप्लाई, बट व्हाट इज देयर फीड स्टॉक, उनका फीड स्टॉक क्या है, दे गेट कुक्ड ऑयल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं कुक्ड ऑयल खाने वाला। अब कुक्ड ऑयल क्या है, हमारे घर में इवन इन माई हाउस हम तो रिफाइंड ऑयल लाते हैं, या सरसों, रिफाइंड तो ऐसे खाते नहीं हम, सरसों के तेल से हमने कोई चीज़ तली, फ्राई किया, वी कीप ऑन फ्राइंग जब तक वो लास्ट ड्राफ्ट नहीं रह जाती, बचा भी लेते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं नहीं। इवन आपने समोसा और जलेबी तलते देखा है, ओह डालता जाता है उसी में, काले काले तेल में तेल और पोर करता जाता है। वी देखो, यू एंड मी नेवर नो द इल इफेक्ट, इल कॉन्सिक्वेंसेस, इट क्रिएट्स कैंसर। हम जानते हुए खा रहे हैं, दे तलता जा रहा है, उसमें जलेबी छान रहा है, काली काली कढ़ाई, काला काला तेल, और हमारे घरों में काला तेल हो जाता है, स्टिल वी आर कुकिंग, वी आर फ्राइंग फूड, हम तल जा रहे हैं। फॉरेन दे यूज देयर कुकिंग ऑयल ओनली वंस, एक बार के बाद रिजेक्ट, और हमारे कंट्रीज में और कंट्री में जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। इस तरीके से होता है। देखो कोई इन्होंने कुकिंग ऑयल से कर दिया। नाउ इंडिया, अब ऐसा नहीं है, भारतवर्ष फेल नहीं है। अभी हाल में सुना था, देहरादून से दिल्ली तक एक फ़्लाइट गई थी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पहले थे, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, लॉन्च किया था। इसका फ़ोटो मैं नहीं दिखा पाया, मैं जल्दी में त्रिपाठी जी नहीं ले पाया, है फ़ोटो। ए बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाई स्पाइस जेट कंपनी है ना, इसकी, partially using biojet fuel, took off from the Dehradun and landed after 45 minutes flight at 11:50 hours at New Delhi airport and marked a new chapter in aviation sector. Okay, हम लोगों को भी we must clap. With the test flight, India has become one of the countries and probably first among the developing nations to use biofuel for flying planes. हम developing nation में हम mostly first हैं. Flight carried 28 people including 28 लोग थे, 5 crew member. The aircraft's right engine was filled with 75% aviation turbine ATF भी पूछा जाता है, ATF aviation turbine fuel जो जहाज़ों मारा जाता है, and 25% of biojet from जेट्रोफा, 20 नहीं 25% from जेट्रोफा। तो really we are lucky कि our country has also been successful or tested successfully, so there is scope and we can go ahead, we can step ahead. आपको लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, मैं चाहता तो इतना कल और आज के लेक्चर को सिर्फ एक स्लाइड से बता देता आपको। अगर मैं चाहता आप केमिस्ट्री के होते तो दिस एक ही स्लाइड मेरे लिए काफ़ी थी, पूरा इसमें आपको जेट्रोफा बता चुका होता। दिस इज नट सेल, यू सी द जेट्रोफा प्लांट, मेच्योर फ्रूट, हार्वेस्टेड फ्रूट। जेट्रोफा प्लांट की क्वालिटी क्या है, रिड्यूस 1 metric ton ऑफ बायोडीजल
leads to reduction of 3 metric ton of CO2, right? 1 hectare जट्रोफा प्लांटेशन में पे $70 एज ए कार्बन क्रेडिट बताया दिया आपको. एंड जट्रोफा क्रॉप्स emits 8 to 10 types of oxygen as compared to normal crops, and जट्रोफा क्रॉप्स absorb 10 types of CO2 as compared to. ये तो 4 फायदे हो गए इन्वेंटर. अब फ्रूट से क्या मिला? डीशेलिंग किया, छिलका उतर गया. दिस छिलका फ्रूट हस. छिलके से वी हैव प्रिपेयर्ड फ्यूल ब्रिकेट. आप जलाइए, हीटिंग कुकिंग फ्यूल है, हीटिंग फ्यूल में इस्तेमाल करिए. अब इससे हमको दूसरा फिर के बाद सीड मिला. सीड मिल गया. सीड को हमने एक्सपेल कर दिया. क्या क्या मिला? ये केक मिल गई और क्रूड ऑयल मिला. केक को हमने कहाँ डाल दिया? बायोगैस में बना दिया. अब केक से हमने अभी एक चीज़ नहीं बताया, नैनो ऐसा बायो फर्टिलाइजर बना दिया. और केक से अभी आई गेव वन प्रोजेक्ट टू वन ऑफ माई कलीग टू पंतनगर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत, वेरी आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर. और इसको केक को इसने बना दिया नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया. और नैनो मटेरियल प्रिपेयर्ड बाई जट्रोफा केक इज़ वेरी स्ट्रांग. उसने एक्वा रेजिया को भी रख के देख लिया और नथिंग हार्म, देयर वाज नथिंग हार्म. इतना अच्छा. इवन इसके एरोप्लेन या तमाम चीज़ों के, हमारी कुर्सी मेज घर द्वार, एवरीथिंग यू कैन मेक फ्रॉम जट्रोफा केक. वाई आई एम एम्फसाइजिंग जट्रोफा केक? क्योंकि बिगेस्ट पार्ट ऑफ जट्रोफा इज 75%, 70-75% ओनली है नैनो लिक्विड. तेल तो 25-30% होता है. तो बिगेस्ट पार्ट इज जट्रोफा. खली होती केक होता है, उसको हाउ टू यूटिलाइज दैट. या तो हम इसमें बदले, या तो उसको केक को पोल्ट्री फीड में बदल लें. अब आइए क्रूड ऑयल को हमने रिफाइंड ऑयल में बदला, राइट? रिफाइंड ऑयल से हमको क्या क्या मिला? हमको सोप भी मिल गया, ग्लिसरीन भी मिल गई, सल्फेट भी मिल गया, बायोडीजल भी मिल गया. इतनी चीज़ें हमें मिल गई, नहीं मिल गई? इतनी बायोडीजल मिल गया प्योर. अब इसी के वुडन उड़ से देखा नहीं, जो आटम के बाद पत्तियां जब गिर जाती तो इसके लिए एक वर्ड है, आपको आप रखना पड़ेगा. यू हैव टू हैव इन माइंड. मल्च, MULC, मल्च. मल्च क्या है? जैसे गांव में जाड़ों में कोई नर्सरी लगाते हैं किसान लोग, तो उसके ऊपर पुआल बिछा देते हैं, देखा है? ताकि ठंडक से उसको नीचे गर्मी जल्दी उग जाए. पुआल बिछा या पॉलीथीन रख देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो मल्च कर देते हैं. हीट मेंटेन रहे उसके अंदर सॉइल में, और जल्दी से जल्दी हो जाए. मल्च हो गया फर्क. अब इसी से हमने इसी को कट करके हम गैसीफायर के थ्रू हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट दिया जाए. तो दिस इज ऑल फ्रॉम ए सिंगल प्लांट. एनवायरनमेंट भी है, सॉइल भी है, सब कुछ है, सिंगल प्लांट. सो इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं. चॉइस इज योर्स. क्या चूज करना चाहते हैं? प्लांट, पीपुल और पॉलिसी. आप सेलेक्ट करिए विच प्लांट यू नीड. व्हाट पीपुल हमारे फॉर्मर सही हैं और पॉलिसी हमारी ही है. ये हमें नाउ द लास्ट स्लाइड विथ ट्राई कलर्स फ्लैग. हमारा कितना खूबसूरत हमारा नेशनल फ्लैग है. दुनिया का ऐसा कोई फ्लैग नहीं मिलेगा आपको. ट्राई कलर. और ऑल कलर्स हैव मीनिंग. शक्ति क्या है? ये कलर क्या देता है? शक्ति, समृद्धि एंड शांति. शक्ति, शांति एंड, जानते हैं नहीं जानते? आप लोग तो पढ़ते होंगे यार. इतना तो सबको, इतना तो नेशनलिटी आनी ही चाहिए हम लोगों को. दिस कलर गिव्स शक्ति, तो जट्रोफा गिव्स यू शांति, एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है, एंड समृद्धि. तो दिस इज ऑल. विद दिस आई से all guys, thanks and thank you very much for listening my lecture. Okay, any question you may please. सर बायोडीजल से इंजन के फ्यूल से कोई वो नहीं आता? बैठिए, पहले ऐसा करिए, लोअर कर लीजिए मास्क को, कोई दिक्कत नहीं, मास्क को नीचे कर लीजिए.